Hello my friends, welcome to BeduCare. This side Surya sir, and today in this particular video we'll talk in detail about the MHA program, the Master of Hospital Administration. Guys, आपने काफी सारी डिग्रीज देखी इन मार्केट विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और अगर मैं कहूँ who can run a hospital better, a MBA person or a person who have a MHA degree? Then guys, answer will be the MHA first. क्यों? We'll talk in detail about this particular program MHA, all about MHA, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम डिटेल्स क्या है, किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आप इसे परस्यू कर सकते हो, क्या फीस स्ट्रक्चर होगी, क्या प्लेसमेंट्स होंगे, करियर स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, वर्थ इट है या नहीं. We'll talk in detail. So stay tuned with me throughout this video. And in case you want a preparation for the TISNET, because guys, after cracking TISNET, you can pursue the TIS MHA program from the TISS. So, want a preparation? Join preparation to selection batch at Be Educate to Be School campaign, where you can join our classroom sessions, live or online sessions, recorded lectures, mock. You will get access for the test series, study materials, doubt support, mentorship, and complete guidance throughout the process. Guys, here you will not get preparation for TISNET only, but you will get preparation for extemper also and the PI, and even they include selection process का कोई भी criteria like TIS, MAT, PAT. You will get preparation for the same. We have new batch guaranteed, no mixing with other students. You will get recording access in our live lectures, repeat class till the exam. So you can join second batch as well and even third batch as well. So if you have any doubts and queries in your mind कि आप प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो, क्या टिसनेट क्रैक करना है, कैसे करना है, what will be the cutoff. If you have any doubts and queries in your mind, ask our counselor. Call on 9702405379. And yes guys, you can join our offline batches at Ghatkopar, Dadar and Dombivli. So let's talk about the Tata Institute history first. Guys, established in 1936, named as Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Sciences. Thereafter, in 1944, it became Tata Institute of Social Sciences, and in 1964, it became the deemed university. ये तो रही हिस्ट्री पार्ट गाइज. नाउ कैंपसेस, ऑल्दो हमें MHA परस्यू करना है, देन विच पर्टिकुलर कैंपस वी हैव टू टारगेट. सो यू कैन टारगेट द टिस मुंबई, क्योंकि टिस मुंबई में ही आपको MHA प्रोग्राम मिलने वाला है. Although you can choose any three programs among two campuses. So there are four campuses: the Mumbai one, Tuljapur, Hyderabad, and Guwahati. So the School of Health System Studies will provide you the TIS MHA program. So previously, in 1989, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज स्टैब्लिश. उसके बाद इन 1993 जब जरूरत लगी कि एक पर्टिकुलर मास्टर प्रोग्राम होना चाहिए जो हेल्थ पॉलिसी रिलेटेड, हेल्थ केयर सेक्टर रिलेटेड प्रोफेशनल्स को डेवलप करे, दे लॉन्च द मास्टर इन हेल्थ एंड मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम इन 1993. Thereafter, in 2006, the Department of Health System Studies renamed as the School of Health System Studies. और तब guys in 2008 मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ विद रिस्पेक्ट टू द सोशल एपिडेमियोलॉजी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जिसे हर कोई कैंडिडेट परस्यू करना चाहता है गाइस. एंड इन 2010 द मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. सो वी हैव टू टारगेट द टिस MHA program. Let's discuss about the MHA. लेकिन उसके पहले guys, it has four different centers: Center for Health and Social Sciences, Center for Health Policy Planning and Management, हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है आप ये भी सीखने वाले हो, एंड इवन द पब्लिक हेल्थ. और गाइज मैं आपको बता दूं, देर इज अ ग्रेट डिमांड इन पब्लिक हेल्थ. काफी सारी टॉप नोच कंपनीज, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको काम करने का मौका मिलेगा, जस्ट लाइक WHO, UNDP, यूनिसेफ. सो बेसिकली ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है फॉर द लीडरशिप रोल्स इन द पब्लिक हेल्थ एंड द मैनेजरियल रोल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. जो स्कूल है थ्रू आउट एक्टिव रहती है, चाहे वो नेशनल रिसर्च के प्रोग्राम हो, इवन इंटरनेशनल रिसर्च के प्रोग्राम हो, ताकि एक पर्टिकुलर हेल्थ पॉलिसी बना सके, उस हेल्थ पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सके थ्रू आउट द स्टेट्स, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन फॉरेन नेशंस, ताकि जो हेल्थ सिस्टम है उसे एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके एंड ऑल्सो पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा दे सके. सो द MHA प्रोग्राम क्या कहता है गाइस? सो बेसिकली आपने कुछ डिग्रीज सुनी है: हेल्थ केयर मैनेजमेंट, MBA इन हेल्थ केयर, MBA इन पब्लिक हेल्थ, MBA इन हेल्थ पॉलिसी, राइट, ब्ला ब्ला ब्ला. देयर आर वेरियस डिग्रीज, लेकिन इज इट इक्विवेलेंट टू द MHA प्रोग्राम? नॉट एट ऑल गाइस. MHA इट्स क्वाइट डिफरेंट प्रोग्राम. जैसे कि मैंने कहा है, हु कैन रन अ हॉस्पिटल बेटर? नॉट अ MBA पर्सन, बट अ पर्सन हु हैविंग द MHA की डिग्री. क्यों गाइस? क्योंकि इसे पता होगा कि वो हॉस्पिटल कैसे रन करता है, उसका फ्लो अप चेन कैसा है, उसका सप्लाई चेन कैसा है, उसकी इन्वेंट्री कैसी है, मैनेजमेंट कैसे है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस कैसा है.
So here the person will learn about the healthcare policies, हॉस्पिटल मैनेजर कैसे बन सकते हैं वो उसे पता चलेगा, हॉस्पिटल पॉलिसी कैसे बनाते हैं, हॉस्पिटल की प्लानिंग कैसे होती है, एक न्यू हॉस्पिटल की क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो उसे पता चलेगा, हेल्थ पॉलिसी एज वी डिस्कस, हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बेसिक इकोनॉमिक्स ऑल्सो, क्लिनिकल सर्विसेज क्या क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, बायोस्टैटिस्टिक किसे कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, गाइस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत बड़ा करियर स्कोप छिपा हुआ है यहाँ, काफी सारे नाम आप जानते हो, पॉलिसी बाजार, राइट, 490 रुपीज पर मंथ, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, पॉलिसी ले लो, काफी सारे एड्स चलते हैं गाइस, काफी डिमांड है, हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप, कंसल्टेंसी मैनेजमेंट, सो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस हैज द पॉलिसी कि जो भी आपने थियोरेटिकल क्लास में सीखा है उसी को आपको इंप्लीमेंट करना है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप प्लेज वाइटल रोल ओवर हियर एंड दैट्स व्हाई दिस इज मोर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू दी इंटर्नशिप। सो ओवरऑल कितनी इंटर्नशिप्स होगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आपको एमएचए प्रोग्राम परस्यू करना है देन डू वी नीड मेडिकल बैकग्राउंड? नहीं यार, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन हाँ तो भी मैं बता दूं मेडिकल बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं गाइस, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डिग्री यू कैन अप्लाई फॉर इट। सो कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, चाहे कोई भी हो, इवन मास्टर डिग्री 3 इयर्स की हो या 4 इयर्स ड्यूरेशन की हो, 10+2+3 हो या 10+2+4, 10+2+2+1, चाहे कोई भी ब्रिज कोर्स हो, बट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस दैट गुड, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द टिस्नेट, देर इज नो एज क्राइटेरिया। सो चाहे कितना भी गैप होगा, इस काफी सारे स्टूडेंट गैप ईयर्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं, सो अगर गैप है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द टिस्नेट। ओके, नाउ पेपर पैटर्न, सो एग्जाम मोड कंप्लीटली ऑनलाइन, टाइम ड्यूरेशन 100 मिनट, मीडियम विल बी द इंग्लिश, मार्किंग सिस्टम सेज +1 0, नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइज, रिलैक्स हो जाओ, आराम से पेपर दे सकते हो। एग्जाम मंथ, एग्जाम जो होती है गाइज यूजुअली जैन फर्स्ट वीक में होती थी, नाउ ये एक्सटेंड हो चुकी है फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स, फेब एंड तक यानी 25 फेब को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टेस्टनेट का एग्जाम होने वाला है। सेक्शंस आर एज फॉलोज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग बोथ 30 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, लेकिन मोस्टली फोकस करना है आपको जनरल अवेयरनेस पार्ट पर। इट हैज सेक्शनल कट ऑफ फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, कश्मीरी माइग्रेंट एंड आर्म फोर्स कैंडिडेट, सो 35%, दैट मीन 14 मार्क्स आपको जरूर लाने हैं, 30% 12 marks if you belong to the OBC and PWD or SC STO, then there is no sectional cutoff. So out of 100 what should be the cutoff? Although 65 to 68 आप easily MHA प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो, कभी ये कट ऑफ हाई होता है कभी ये लो हो जाता है एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, लेकिन फिर भी आपको टारगेट करना है 70+ मार्क। ओके गाइज, कभी हो सकता है ये 58 भी जाए, कभी हो सकता है 63 भी जाए, लेकिन सेफ स्कोर शुड बी द 70 out of 100 marks. Okay, now let's talk about the selection process criteria. After cracking TISNET, you have to appear for the online assessment. So there will be one extempore reflection on a given topic. एक particular topic दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको 2 to 3 minutes बोलना है. You can also ask for the second topic, but no third topic. Weightage will be the 20% weightage for the extempore part. Thereafter, online personal interview, and it has 30% weightage, and your TISNET exam 50% वेटेज। सो ओवरऑल आपको एक स्कोर दिया जाएगा आउट ऑफ 100 एंड आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल गाइज, एट बी एडुकेयर यू विल गेट प्रिपरेशन फॉर द टिस्नेट एंड ऑल्सो फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट, एक्सटेम्पर पार्ट एंड ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। इवन अगर वो जीडी इंक्लूड करेंगे you will get preparation for the same, even they include PAT or even they include MAT, you will get preparation for all these selection process parameters. Now let's talk about the program details. So master of hospital administration 50 सीट इनटेक, और काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ चलेगी। सो नॉट ओनली एमबीबीएस कैंडिडेट, नॉट ओनली बीडीएस और पर्सन हैविंग बीएमएस और बीएचएमएस, हर कोई कैंडिडेट, इवन चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, उसने बीकॉम किया हो, ओके, या आर्ट्स किया हो, दे ऑल कैन परस्यू द मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइस कंपटीशन ईयर बाय ईयर टफ होते जा रहा है, आपको काफी अच्छा प्रिपरेशन करना है बिकॉज सीट इनटेक इज वेरी लेस, ओनली 50 सीट्स, ड्यूरेशन 2 years, सेमेस्टर 4, फील्ड वर्क एंड मैंडेटरी इंटर्नशिप्स, दे आर 3 इंटर्नशिप जो कि यहाँ मैंने लिस्ट किए गाइस। फर्स्ट इंटर्नशिप अर्बन हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड होगी फॉर 8 weeks। सो आपको कहाँ प्लेस किया जाएगा? इन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, जहां आप ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझोगे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, अर्बन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे प्रोसेस करता है,
प्लानिंग कैसे होती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, उनके लिंकेजेस कैसे हैं, इवन सिनर्जीज कैसे है बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स. एंड सेकंड इंटर्नशिप विल बी द एनजीओ इन रूरल एरिया फॉर 8 weeks, जहाँ स्टूडेंट वर प्लेस्ड इन डिफरेंट नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस इंडिया, जहां आप उनके सप्लाई चेन रिलेटेड प्रोसेस को देखोगे, उनके इन्वेंट्री को देखोगे, एंड ऑल्सो द मटेरियल मैनेजमेंट, एंड इवन यू कैन अप्लाई योर नॉलेज और वहां आप न्यू स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर सकते हो. एंड द थर्ड इंटर्नशिप, रूरल हेल्थ सिस्टम. गाइस, मोस्टली इंडियन गवर्नमेंट को एंड इवन ऑल दी हेल्थ सेक्टर्स के प्रोफेशनल्स को यही फोकस करना है, रूरल हेल्थ सिस्टम को लेकर. सो 4 weeks की आपकी वहां इंटर्नशिप होगी, एक्सपोजर टू रूरल एरियाज एंड हेल्थ सेक्टर. काफी सारे रिसर्च डिसर्टेशन पर काम करना है आपको, सो इट इज मैंडेटरी. आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक और उसके ऊपर इन डिटेल रिसर्च कर सकते हो, खासकर रूरल एरियाज को लेकर, प्रीनेटाल प्रेगनेंसी को लेकर, कम्युनिकेबल डिसीजेस को लेकर, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन को लेकर. सो ऐसे कुछ टॉपिक पर आपको रिसर्च करना है. एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज फील्ड वर्क आपको प्रोवाइड करता है वेरिड इंडस्ट्री एक्सपोजर, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को लेना, लाइव एक्सपीरियंसेस देखना, एंड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स एट द वर्क प्लेस. जो कुछ भी आपने क्लासरूम में सीखा है, यू कैन इजीली अप्लाई दो स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप. और गाइस, इंटर्नशिप को हल्के में नहीं लेना है. यही इंटर्नशिप आपको आगे चलकर पीपीओ और पीपीआईज देने वाले, दैट मीन्स प्री प्लेसमेंट ऑफर्स. यस, और अगर आपको पीपीओ मिल गया है, दैट मीन्स इवन आपका 4th सेम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में जॉब रहेगी. ओके, सो दीज ऑल आर द प्रोग्राम डिटेल्स. एंड नाउ the most important parameter, the fees and the placement. Is it worth it? Yes guys. Semester wise course fee की बात करें, then guys, only 51,500 for first sem. For second sem it is 27,500, third 39,000, and 27,000 for fourth sem. Overall जो fee structure है guys, that is only 1,45,000 for 2 years. And if you talk about the placement stats, उसके पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा गाइस, एंड इवन द टॉप कंपनीज के बारे में, जहां आप देख सकते हो कि क्या मुझे ये बेस्ट आरओआई प्रोवाइड करेगा. गाइस, you can be part of international agencies such as the WHO or UNICEF, Ministry of Health of both state and the union, national health schemes and state health schemes, NGOs, corporate hospitals, health insurers, health research organizations, pharmaceutical companies, even in the consultancy firms, insurance companies, and even the ITs who work on healthcare sector. There are various organizations just like Wipro, like IBM, like Access Healthcare. So let's talk about the placement stats. Top 25% got 13.9 lakh per annum, top 10% 18.4, high CTC 25.3, and the average CTC, this one 9.6, now became 11 lakh per annum in 2023. So guys, you can easily calculate the ROI over here. And if you are still doubts about the educational background, look at the bifurcation guys. BDS 45%, B BTech 25, BA BCom 11%, BSc 9, BPharm 4%, BMS BPT 4%, and even MBBS 2%. So if you are candidate who are having graduation degree, not as a medical background, any other, you can still apply. You can play various roles such as hospital administrators and managers, consultants, business analysts, medical advisor, product managers, claims and underwriting, and you can be a part of these top notch companies. So guys, मेरे हिसाब से this program is worth it. So you got the answer. Who can run a hospital better? Either MBA person or a person having MHA degree. So obviously the MHA degree holder. Okay guys, so wanna pursue the MHA, then you have to prepare for the TISNET, and wanna crack TISNET, join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation, or in case you are Pan India student, you can call on 9702405379. Don't forget to download our app to get the free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and on Instagram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.